बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम यू ऑल। सो आज हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से एंड दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सिलेक्शन इन एनिमल ब्रीडिंग। जो हमने पहला क्लास लिया था सिलेक्शन के बारे में, उसी के साथ कंटिन्यूटी में है और आज हम इस पर बहस करेंगे कि सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है और सिलेक्शन के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और कौन सी इक्वेशन है और आखिर में हमारा ऑब्जेक्टिव और हमारा गोल क्या होना चाहिए। सो व्हाई शुड अ वेटनेरियन केयर अबाउट सिलेक्शन? यू ऑल आर वेटनेरियन एंड you all are a student of now animal breeding and genetics, and as I have mentioned, selection is the soul of animal breeding and genetics. No genetics, no improvement without selection. So ये क्यों ज़रूरी है वेटनेरियन के लिए सिलेक्शन को जानना और सिलेक्शन को समझना? Because number first, client advice. Livestock producer and pet breeders will ask you for guidance. You are the expert of your field. You will be asked by farmers, by community people, by laymen, and by livestock producer for selection of their animals. So being an expert, you have to give your advice, your opinion, your expert knowledge for what to breed, how to breed, what to select, and what not to select. Not to select means culling. Culling is also very important in animal breeding and genetics. When you are going for selection, the other you are going for culling. Culling for what? Culling for the low producing animals, inferior animals, those which we do not want to keep them in our herds, in our flocks. So we need to cull them. The opposite is selection. What we want to keep in our herds, in our flocks? The healthy one, the fit one, the best one, the high producer. So we go for selection. Then comes health and welfare. Selection decision is directly associated with the health and welfare of animals. If you are going for selection of superior bulls, superior animals, so of course their health will be better. And if their health is better, their welfare will be fine. Their production will be high, which is the desire, which is the theme of a farmer, to have better flock, to have better animals and have high producer animals. Similarly, preventive medicine, using selection and genetics to prevent diseases. मेडिसिन में हमारा गोल ये होता है कि हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो बीमारियां आती हैं हम उनका इलाज करते हैं। प्रोडक्शन में हमारा गोल ये होता है कि बीमारी आए ही ना, बीमारी की आने से पहले उसका तदारुक करना। एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर एनिमल्स ऑफ गुड जेनेटिक्स, इट मीन्स you are inculcating, you are embedding, you are propagating the good genetics, which means reduced diseases, lower diseases, better health, lower diseases. So selection plays a vital role in minimizing the diseases, in preventing the diseases. और बाय द वे, अभी आप किसी भी फील्ड में जाए, जेनेटिक्स हिसाब से दिया गया, जेनेटिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बेशक आप मेडिसिन में जाएं, आप पैथोलॉजी में जाएं, आप माइक्रोबायोलॉजी में जाएं, आप जिस भी फील्ड में जाएं, बिकॉज ऑल ऑफ द स्टडी इज नाउ मॉलिक्यूलर। आप एनाटमी में जाएं, एनाटमी में अभी वो जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट है बोन्स और मसल्स, वो तो बेसिक्स है, वो तो ऑफ कोर्स आपको आने चाहिए, लेकिन नाउ यू हैव टू गो टू द मॉलिक्यूलर लेवल, माइटोकॉन्ड्रिया और उसके इनसाइड क्या हो रहा है, सेल के इनसाइड क्या हो रहा है। सो दैट इज ऑल जेनेटिक्स। एंड मेडिसिन में भी कोई भी बीमारी है तो उसमें भी आप जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। सो देन कम्स प्रॉफिटेबिलिटी। Healthy and genetically sound animals will give you more profit. The healthier the animal, the more profitable they are. The more animal की longevity ज़्यादा होगी, उनका लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा. It means they will be giving you more production in their life. And you are a trusted expert. Understanding selection
You can give scientifically sound and ethical advices to farmers, to the community, and to the different breeders, societies. That's why it's important for you to know the selection and to understand the selection for yourself and later on for the community. Now the engine of selection. The engine of selection is heritability. जिस तरह हमने कहा कि एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का सोल और इंजन क्या है, सिलेक्शन है. सिलेक्शन का सोल क्या है, हेरिटेबिलिटी. हेरिटेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h स्क्वायर से. h स्क्वायर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेरिटेबिलिटी. और इसका फार्मूला क्या है, h स्क्वायर हेरिटेबिलिटी इज इक्वल टू एडिटिव वेरिएशन मल्टीप्लाई बाय फिनोटाइपिक वेरिएशन. इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, हेरिटेबिलिटी इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन दैट इज ड्यू टू एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन. इसको हम बोलते हैं हेरिटेबिलिटी. जो फिनोटाइपिक में जो वेरिएशन आती है वो किस वजह से आती है, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से आती है. और जेनेटिक में हमेशा सिर्फ एक जीन, सिंगल जीन काम नहीं करता, रादर मल्टीपल जीन्स दे वर्क टुगेदर फॉर अ सिंगल ट्रेट. ठीक है. सो इसको हम बोलते हैं एडिटिव जेनेटिक एक्शन. एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक जीन में डिफरेंट जीन्स अपना असर ऐड करते हैं, अपना इम्पैक्ट ऐड करते हैं और वो हमारे पास एक फिनोटाइप को इवेंचुअली एक फिनोटाइप उससे बनता है. नाउ द हायर द हेरिटेबिलिटी, हायर कितनी होगी, हेरिटेबिलिटी की का जो रेंज है दैट रेंज फ्रॉम 0 to 1. हेरिटेबिलिटी का रेंज होगा फ्रॉम 0 to 1. लोवेस्ट 0 है, हाईएस्ट 1 है. द लोअर द हेरिटेबिलिटी, मिड क्या होगा 0.5. द हायर द हेरिटेबिलिटी, हायर कितनी होगी, अगर ये 0.4 से ऊपर हो तो इसको हम बोलेंगे हायर, और अगर ये 0.2 से कम है उसको हम बोलेंगे लो हेरिटेबिलिटी. हाई हेरिटेबिलिटी कौन सी होगी, द हायर द हेरिटेबिलिटी मींस द ट्रेट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स. इसका मतलब ये होगा कि जो ट्रेट हम स्टडी कर रहे हैं, जो फिनोटाइप है, वो जेनेटिक्स का इन्फ्लुएंस उस पर ज्यादा है. और अगर हेरिटेबिलिटी कम होगी तो उसका मतलब होगा कि उस पर जेनेटिक्स का इन्फ्लुएंस कम है, उस पर एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा है. एंड व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज एनीथिंग एक्सेप्ट जेनेटिक्स. एनवायरनमेंट इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के अलावा हर एक चीज़ एनवायरनमेंट है. उसमें हम आपका टेम्परेचर भी आता है, आपकी ह्यूमिडिटी भी आती है, आपका क्लाइमेट भी आता है, आपका स्मोक और स्मोक पैटर्न भी आता है, आपका कह लें जो आपकी मैनेजमेंट है, फार्म की मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो भी आता है उसमें आपकी न्यूट्रिशन भी आती है, उसमें आपकी सारी चीज़, आपकी फाइनेंसेस भी उसमें आते हैं. ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट है, मैनेजमेंट है. और जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स वो है जो कि एक इंडिविजुअल अपने पेरेंट से इनहेरिट करता है. सो जेनेटिक्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एनवायरनमेंट को ऑफ कोर्स आप चेंज कर सकते हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं. ठीक है. सो जिस ट्रेड की हेरिटेबिलिटी ज्यादा होगी उसका मतलब है कि आप जेनेटिक्स के थ्रू उसको जल्दी उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं. और जिनकी हेरिटेबिलिटी लो है उसमें आपको एनवायरनमेंट पे बहुत काम करना पड़ेगा. आपको अच्छी न्यूट्रिशन देनी होगी, आपको अच्छी मैनेजमेंट देनी होगी, आपको ऑप्टिमम एनवायरनमेंट देना होगा, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड एवरीथिंग. तब जाके वो आपको हायर गेन देगा, ज्यादा प्रॉफिट देगा. अब वो ट्रेड जिनकी हेरिटेबिलिटी हाई है उनकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि मिल्क यील्ड, जैसे कि ग्रोथ, जैसे कि वूल क्वालिटी. और जिनकी हेरिटेबिलिटी कम है जैसे कि फर्टिलिटी और लिटर साइज. दिस डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट. अच्छा, अब ओके, ये एक फॉर्मूला है, दिस इज वेरी बेसिक. Being a student of animal breeding and genetics, you must know this. P is equal to G plus E plus
G multiplied by E. P is the phenotype. Phenotype is equal to genotype plus environment plus the interaction of genotype and environment. जो आपको दिखाई देता है, this is phenotype. आपका फेस कलर, आपका स्किन कलर, आपके आइज कलर, आपका हेयर कलर, आपका स्टेचर, आपका कद, आपका वजन, आपको कौन सी बीमारियां आती है या नहीं आती, ये सारी चीज़ें फिनोटाइप। और इस हर फिनोटाइप के बैकग्राउंड में जीनोटाइप होता है, दैट डिटरमिन्स योर फिनोटाइप। अब फिनोटाइप किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? आपकी जीनोटाइप पे डिपेंड करेगा, जो आपको पेरेंट्स से मिला है, आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। इन्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट ओनली योर जीन्स। अगर हम इसको कहें नेचर वर्सेस नर्चर या जेनेटिक्स वर्सेस इन्वायरमेंट, तो साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि 25% ऑफ यू इज जेनेटिक्स, बाकी 75% आपका इन्वायरमेंट है। दे डिसाइड्स व्हाट यू आर, व्हाट योर पर्सनालिटी इज, हाउ टॉल यू आर, हाउ गुड लुकिंग यू आर, दिस इज ऑल योर इन्वायरमेंट। अब अगर कोई एशियन कम्युनिटी के बंदा, आप उसकी पैदाइश वेस्ट में हुई हो, वहाँ पे रह रहा हो, तो उसकी रंगत हमसे काफ़ी अच्छी होती है। इट्स ऑल अबाउट इन्वायरमेंट, क्योंकि टेम्परेट इन्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन अच्छी होगी, दैट हैज़ रिफ्लेक्शन इन योर फेस, अच्छी न्यूट्रिशन की। जो चाइनीज़ थे, अभी शायद आपको ये ख्याल हो कि चाइनीज़ छोटे छोटे हैं, हमारा ये ख्याल होता था कि चाइनीज़ करते बहुत छोटे होते थे या होते हैं, लेकिन लेट मी गिव यू अ सरप्राइजिंग फैक्ट। जो मेरा हाइट है, आई हैव एवरेज हाइट 5.6, 80% या 90% ऑफ द चाइनीज आर टॉलर देन मी, ठीक है। सो आई वॉज एवरेज हाइट इन चाइना। क्या वजह है? few decades back they were short stature, now they have very good stature, very good healthy bodies. What is the reason? Environment. Basically the nutrition. In Pakistan, I'm forgetting the exact number, but I guess it's 60%. Over 60% of the kids, they are malnourished. They do not reach to their desirable height because of malnutrition. So they have stunted growth rate. And the biggest reason for stunted growth rate is nutrition, poor nutrition, malnutrition in the environment, the stresses. Then comes the very important thing is the interaction of genotype and environment. One is your genotype, one is your environment. The third very important thing is, okay, environment को हम epigenetics भी बोल सकते हैं. Epigenetics is all about environment. It's all about your nutrition, all about your living style. So genetics, environment को आप epigenetics भी partly कह सकते हैं. Then interaction of your genetics and environment. आपके genes अच्छे हैं, लेकिन आपको environment अच्छा नहीं मिल रहा, तो उसकी अच्छी interaction नहीं हो रही. मिसाल मैं ये देता हूँ कि एक काव जो कि ऑस्ट्रेलिया में 50 लीटर दूध दे रही है, आप उसी के सिबलिंग, उसकी एक सिस्टर वहाँ पे 50 दे रही है, दूसरी सिस्टर हम पाकिस्तान इंपोर्ट करते हैं, वो 50 से ड्रॉप कर देती है, 20 पे आ जाती है, अगले 2-3 साल बाद वो 15 पे आ जाती है. द सेम जेनेटिक्स. अब तो जीन्स का कोई कसूर नहीं है कि हम कहें कि उसकी जेनेटिक्स बड़ी अच्छी है. सेम जेनेटिक्स है जो ऑस्ट्रेलिया में है, वो हमने इंपोर्ट कर ली, लेकिन अब प्रोडक्शन कम होगी बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट. अगर हम उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो सुपीरियर एनिमल्स, सुपीरियर जेनेटिक्स, दे विल नॉट परफॉर्म वेल. उनमें पोटेंशियल है, लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उसकी इंटरेक्शन सही नहीं हो रही, तो उनका प्रोडक्शन कम होगा. सिमिलरली जिस तरह हमारे बच्चों में अगर पोटेंशियल है 6 फीट रेस होने तक, लेकिन अगर उनको अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो 5 पे या 5 से कम पे उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है, विच इज़ ड्यू टू द एनवायरनमेंट, द इंटरेक्शन ऑफ जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट. So the goal of animal breeder in genetics is predicting genetic gain. हमारा गोल क्या होता है? हमें जेनेटिक गेन देखना होता है कि सिलेक्शन से हम कितना गेन कर रहे हैं, हमारा जेनेटिक गेन कितना है, हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है. सो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस डेल्टा जी से. डेल्टा जी इज इक्वल टू आई multiply by r multiply by sigma divided by L.
So what this represent? I is the selection intensity. Selection intensity means how choosy are we. हम कितनी choosy हैं हमारे selection में. That is the proportion of animal selected. कितने हम choosy हैं. हमने अगर 5 एनिमल चूज करने हैं तो आया वो हम 10 में चूज कर रहे हैं, 100 में चूज कर रहे हैं, 1000 में चूज कर रहे हैं, लाख में चूज कर रहे हैं. आपके ख्याल में कौन सी सिलेक्शन अच्छी होगी? अगर हम 5 एनिमल सेलेक्ट कर रहे हैं, 10 में अच्छी होगी कि 100 में कि 1000 में कि लाख में? लाख में ज़्यादा होगी अच्छी, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस. उसमें से अगर हम 5 चूज करेंगे तो दे विल बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. अगर हम 10 में चूज कर रहे हैं सो वी हैव वेरी लिटिल ऑप्शन. जो बच्चा को चाहे उसी में से हम पिक कर रहे हैं. राइट? Then comes R is accuracy. Accuracy means how right are we. हम अपने सिलेक्शन में कितना एक्यूरेट है. The correlation between our estimated and true breeding value. ये अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि what is estimated breeding value and what is true breeding value. एक उसकी एक्चुअल वर्थ है, ट्रू ब्रीडिंग वैल्यू है एनिमल की. एक हमारी एस्टिमेटेड, हम एस्टिमेट करते हैं कि उसकी इतना वर्थ है. So this is R is accuracy. Then sigma is the genetic standard deviation. It's the deviation how much genetic variety exists. Deviation is always there. ठीक है, हम ये नहीं होगा कि हम चीजें are very fixed. Things are not really fixed. Variation still exists. So sigma is genetic variation, and L is the generation interval. How long between generations? How long between generations? इसका क्या मतलब हुआ? We measure the success of selection program by the rate of genetic gain per generation. कि per generation में कितना हमारे पास genetic gain आ रहा है. Per generation का क्या मतलब? कि पेरेंट्स उसको हमने क्रॉस किया तो उसके बच्चे आए, बच्चे हम देखते हैं. अगर फॉर एग्जांपल हम मिल्क के लिए देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसके पेरेंट्स, उसकी माँ कितना दूध दे रही थी. अब जो उसकी बच्ची आई, खाफ बछड़ी आई, वो कितना दूध दे रही है जब वो जवान हो गई. तो 1 जनरेशन में हमने कितना गेन किया. उसकी माँ 20 दे रही थी, अभी उसकी बच्ची जो जवान हुई वो 30 दे रही है. तो हमने 10 लीटर पर जनरेशन गेन कर लिया, विच इज़ अ वेरी ह्यूज गेन. तो इट डिपेंड्स. हम कैलकुलेट करेंगे कि जनरेशन गेन हमारे पास कितना जल्दी आ रहा है. एक जनरेशन में, 2 में, 5 में, 10 में, 50 में, 100 में, कितनी जनरेशन बाद हमारे जेनेटिक गेन हमें मिल रहा है. सो हमारा गोल क्या होगा, हमारा पर्पस क्या होगा? आवर जॉब, हमारा जॉब क्या होगा? टू इंक्रीज द सिलेक्शन इंटेंसिटी एंड एक्यूरेसी एंड रिड्यूस द जनरेशन इंटरवल. कि कम जनरेशन में, थोड़े टाइम में, कम वक्त में हमारे पास ज़्यादा गेन आ जाए. ये हमारी ऑब्जेक्टिव होगी, हमारी विश होगी, हमारी डिज़ायर होगी. So this is all about today lecture. See you in the next lecture.